programs when the cell was not there. So we have spent some of the amount in training the government officials and stakeholders. And that means you have about 40 lakhs round 40 lakhs. approx. Okay. So 40 lakhs, I think we will adjust with the payment of this current ECBC cell. Yes, ma'am, you can. What the thought was कि actually our building permission portal, we are in process to incorporate it with the prevailing building approval process of UADD. So for that, PREDA is planning to create a portal for this building permission portal. For this ECBC to get incorporated with the prevailing one. So some of the amount will be spent there. We are planning for the implementation only. So I will request ki we'll see how much amount will be spent on that. You can send additional amount for this ALSD new cell which has been created. And if the amount will not be spent, then you can adjust it in future. No, you have to actually decide whether you will utilize for that tool. Okay. Or that will not be utilized. So if you will decide to utilize, then you have to send a mail or a letter to BEE that you want to spend that amount for the development of that tool. Okay. So that will give you consent, but then again you have to share all the details like Sure, your bid amount and Sure. Final price of the bid amount, Sure, all ma'am. those things. So that will, but that you have to take a call very soon. Because Okay. we have to give the first 10% we have to release to the. Even ma'am, one of the activities was we are trying to implement a dashboard for ECBC. At the time of implementation, how many buildings, all will be in the live व्यू कि कितनी बिल्डिंग्स छत्तीसगढ़ में हैं और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना उनका कंजम्पशन है, ये प्लानिंग थी. लेकिन अभी स्टिल अगर ऐसा कुछ भी होता है, आई विल इन्फॉर्म बी एंड विल टेक कंसेंट फ्रॉम बी. बट जल्दी करना है आपको ये डिसीजन, बिकॉज 10% अभी पेमेंट रिलीज होगा सारे श्योर मैम सेल को. जी. तो अगर उसको आप जो भी आपका डिसीजन है आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए. बिल्कुल. सो दैट की एक्स्ट्रा अमाउंट विल रिलीज टू द सेल. बिल्कुल मैम. ऑल द यूसेज हैज बीन सेंट फॉर प्रीवियस सेल. यस. जैसे आपने अभी बताया कि 20 लाख यू हैव यूटिलाइज्ड. यस. अब फ्रॉम दैट 60 लाख. यस. तो उसका यूसी भेज दीजिए. ठीक है मैम, उसका यूसी भेज दूंगा. उसका यूसी भेज दूंगा. ठीक. नेक्स्ट. So ECBC notification status is that ECBC is notified in our state. Rules are still pending in Mantralaya to get notified. From how many days तो बोलना ठीक नहीं होगा. How many years? Ma'am, ECBC code was notified on 2023, 17 March. So at the same instant we have submitted both rules and code. But the secretary said कि first we will notify the code as we don't have any hands. अगर इम्प्लीमेंटेशन करना हुआ तो कैसे होगा? हमारे पास थर्ड पार्टी असेसर्स नहीं है, हमारा बिल्डिंग परमिशन पोर्टल स्टार्ट नहीं है. तो अगर मैं इसको अगर आज नोटिफाई कर देता हूँ तो कल से आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे? तो एट दैट केस वी सेड ओके एटलीस्ट कोड गेट्स नोटिफाइड, तो रूल्स तो हो ही जाएंगे. बट उससे कोई फ़ायदा क्या होगा अगर कोड नोटिफाई हो गया, रूल्स नोटिफाई नहीं हुआ और आपके बिल्डिंग बायलॉज में भी वो इंक्लूड नहीं हुआ? कुछ फायदा है उसका? इन केस ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हैज गिवन अस अ लेटर एंड दे assured that कि at the time when your rules get notified on the same instant from next day will start the process to get incorporated in भूमि विकास नियम. तो रूल्स से वो उनको बताइए कि रूल्स तो डिफरेंट पार्ट है, बट ECBC तो नोटिफाई हो गया ना. यस मैम. तो ECBC नोटिफाई हो गया, बोलिए उनको कि आप तो बिल्डिंग बायलॉज में इंक्लूड कर दीजिए उसको. बट that was not convincing. उनको बहाना चाहिए डिफर करने का. Yes. तो इसीलिए yesterday I requested all the SDAs कि ECBC कोड एंड रूल्स को एक साथ नोटिफाई कर लीजिए. जी. सो इसमें अगर डिले 2 साल से वो पेंडिंग है जी, अब रूल्स नहीं हो रहा है, तो फिर नोटिफिकेशन का कोई there is no output. Okay. So my request would be your cell is D2O, right? Presently it's ALSG. ALSG. Who is from ALS? So you please draft their code and rules for ECSBC preparing.
So within 1 month, that code and rules you please submit to the authority for the approval. And once this code and rules are notified, Yes, ma'am. you just ask the UDD to incorporate. Sure, ma'am. कि इसको थोड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ इज ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट Yes, ma'am. एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़. Sure. ओके. So, if we talk about the number of buildings ECBC compliant, so there is no ECBC compliant building in our state. But yes, 24 green buildings are there in our state at the time. I don't want to see this number. Okay. Why should I see IGBC गृह लीड कितना हो गया? Yes. मुझे ये देखना है बी रेटिंग कितने बिल्डिंग्स ने लिया. But the thing is, ma'am, we also have Shun labeled building, 2 numbers of Shun level buildings. These are the schools of railway schools. So they get this labeling Shun label next previous year only. मिनिमम तो एक साल में 40-50 बिल्डिंग तो हमें कर लेना चाहिए एक स्टेट का, बिल्कुल. जो बिग बिल्डिंग है. Yes, ma'am. और अभी 10 या 2 को दिस फिगर्स आर वेरी स्मॉल, सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज दिस नंबर्स. Sure, ma'am. एंड यस्टरडे मैंने बहुत सबको आई एक्सप्लेन द मोडालिटीज़ कि कैसे Yes, हमें ma'am. करना है. Yes, ma'am. तो सेल आपको मिला हुआ है, 3 लोग हैं उसमें. प्लीज़ बिल्कुल. यूटिलाइज देम प्रॉपरली Okay, ma'am. and increase these numbers because we are from government department, so हमें government का जो प्रोग्राम है उसको encourage करना है. बिल्कुल. Because I explained you IGBC गृह लीड का जो मैंने when I analyze their rating program, those are not 100% based on 100% energy efficiency. Okay. So that's why I am not saying कि if one building owner is interested to take गृह rating, nobody will stop him. Yes, ma'am. But हमें अपना B का स्टार रेटिंग भी प्रमोट करना है. Sure. सो अगर हम बी स्टार रेटिंग की बात करें तो हमारा जो प्रीवियस सेल था D2O, ये जो 10 नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो उन्होंने ही आइडेंटिफाई करी थी एंड ऑल द 10 बिल्डिंग्स गेट द स्टार रेटेड फ्रॉम बी. तो जैसे ये इतना हुआ, जो एक आइडिया मुझे अभी ये फील हो रहा है कि आप जो बिल्डिंग को स्टार रेटिंग मिल रहा है जी. तो उसको आप डिसिमिनेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए. आपका फेसबुक का पेज होगा, बिल्कुल. ट्विटर होगा, आपका बाकी जो भी सोशल जी, मीडिया होगा, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको एडवर्टाइज करेंगे Advertise करें. तो बाकी गवर्नमेंट बाकी बिल्डिंग्स को भी पता चलेगा कि ऐसा कोई स्टार रेटिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है ये स्टार रेटिंग. बिल्कुल. तो उसमें उनको हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग बिल्डिंग आएंगे. बिल्कुल. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कम से कम बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी उनका EPI डाउन होगा. बिल्कुल. और EPI डाउन होना ही हमारा मेन एजेंडा है. बिल्कुल. तो इसको थोड़ा सा सारे SDA को, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, Yes, ma'am. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द SDAs हु आर हियर दैट जो भी बिल्डिंग्स का रेटिंग हो रहा है, जैसे उड़ीसा में अभी कल हमने 3-4 प्लैक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो भी 5 स्टार रेटेड बिल्डिंग है या 4 स्टार रेटेड बिल्डिंग है उनको थोड़ा सोशल मीडिया पे लेके आइए, बिल्कुल. तो लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा कोई रेटिंग है. बिल्कुल मैम. बिल्कुल मैम. इवन मैम आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये जो 10 बिल्डिंग्स हैं, हमारा जो मंत्रालय है वो B5 स्टार रेटेड है. और छत्तीसगढ़ मंत्रालय सर, बैगा सर, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए हैं सर. मैम 15 साल पहले हमने B से 5 स्टार रेटिंग ली थी. इवन जो कल तारादहाल सर ने दिखाया CSER से बिल्डिंग, वो बिल्डिंग भी अभी रिन्यूअल हुई है, उसका 5 साल हो गया था और D2O ने ही उसको रिन्यूअल प्रोसेस पूरा किया था और अगेन इट गेट्स 5 स्टार रेटिंग. So actually why it happens like it's not like the building owners don't want to apply for this star rating. Sometimes it does not come to their mind. Yes. ठीक है, उनको ये कोई बता नहीं रहा है या उनको पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे बिल्डिंग ओनर्स को. कल जैसे मैम यहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि बहुत सारी चीज़ हम मिस कर जाते हैं. हाँ. और जब हम लोग ऐसे मीटिंग में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. जी. तो इसीलिए हमें, जैसे आपने बताया 2015 में उनको मिला था, बिल्कुल. तो अभी तक हमारे पास 12 क्यों है? अभी तक तो हमारे पास
200-300 बिल्डिंग को रेटिंग हो जाना चाहिए। एक्चुअली मैम छत्तीसगढ़ इज़ अ ग्रोइंग स्टेट, अभी Yeah. बन रहा है और बिल्डिंग्स अभी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो अभी इतनी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हमको ईजिली नहीं मिल पाती हैं। जितनी बन गई थी हम सबसे कांटेक्ट किए, नॉमिनेट किए, उनको आइडेंटिफाई किए और फिर उसे स्टार रेटिंग कर लिया है। स्टिल अगर अभी कुछ बची है डेफिनेटली विल। हाँ, और जैसे सोशल मीडिया का तो आपको करना ही है, एंड प्लीज़ राइट लेटर्स फ्रीक्वेंटली ओके, टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। श्योर। जैसे आपके जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है हाँ जी। उनको लेटर लिखेंगे, और सो दैट लेटर लिखने से उनके देन इट विल क्लिक देयर माइंड, हाँ ऐसे कुछ हो रहा है ये भी। सो ऐसा नहीं कि 100% ओनर विल फॉलो इट, एटलीस्ट 20% तो फॉलो करेंगे। करेंगे, ठीक है मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट मैम सुपर ECBC में हमें जो 5 करोड़ का ग्रांट बी से मिलना है, जिसमें 2.5 करोड़ हमें मिल चुका है, एंड क्रेडा इज़ प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट इट्स ओन हेड ऑफिस बिल्डिंग एज अ सुपर ECBC compliant बिल्डिंग, एंड फॉर दैट क्रेडा हैड फ्लोटेड e-tender and hired a design consultant. So we had hired the design consultant, and the designing process is under process. Still we have not finalized the design, and after that we'll float a tender for construction. So yet the tender has not yet floated Which one, ma'am? For construction? for construction. यस, कंस्ट्रक्शन का अभी फ्लोट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने डिज़ाइन कंसल्टेंट हायर किया है। सो DPAP एंड D2O गेट्स कंसोर्टियम बिडर, दे आर द कंसोर्टियम बिडर एंड वी हैव हायर्ड देम। B2O विल डू द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग वर्क एंड DPAP विल डू द आर्किटेक्चर वर्क फॉर आवर बिल्डिंग। बट दिस हेमंत कहाँ गया? तो ये जो फंड है वो अभी आपके यूटिलाइज नहीं हुआ है मैम, क्योंकि हमें अभी, क्योंकि डिज़ाइन फाइनल नहीं हुई है। डिज़ाइन फाइनल होगी देन ही विल सबमिट द इनवॉइस। सो पेमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो इन अ पार्ट पेमेंट। वी हैव डिज़ाइन द टेंडर की 10%, 5% आफ्टर ड्राइंग अप्रूवल, आफ्टर GFC जो होती है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, तो उसमें 5%, ऐसे करके हमने उसे बाइफर्केट किया है पूरे पेमेंट को भी। तो एकदम से पूरा स्पेंड नहीं होगा, वो पार्ट पेमेंट में ही यूटिलाइज होना स्टार्ट होगा। ये फंड आपको सैंक्शन कब हुआ? मैम 2.5 करोड़ ये हमें हुआ था जब मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए मैम उसको। 2-3 साल हो गए ये फंड आपको Ma'am, सैंक्शन this- हुआ है, अभी तक आपका टेंडर नहीं हुआ है। Ma'am, तो ये तो tender- मैं कहूँगी बी tender we have- का फॉल्ट है ये। We have floated हमने क्यों अभी इनको अभी इतना जल्दी क्यों देना है? So we are new to the program, so we can't comment this. But अभी what about the interest? इंटरेस्ट का क्या है? that I have to find with my finance section कि उसका इंटरेस्ट। उसको हेमंत को बुलाना। इसका एक्चुअली देखना पड़ेगा कि जिन जिन के पास इतने बड़ा अमाउंट है तो उसका इंटरेस्ट का मैम क्या? एक्चुअली क्रेडा आज से नहीं 2-3 साल से लगातार टेंडर फ्लोट कर रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 6 या 7 टाइम्स में ये सक्सेसफुली, क्योंकि कोई बिडर ही बिड नहीं करता था। कभी एक बिडर आता था, कभी 2 आते थे, तो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता था टेंडर। ऐसा नहीं है कि क्रेडा पैसा मिलने के बाद कुछ भी नहीं किया, हम लगातार प्रोसेस में थे। पहले तो हमको लैंड अलॉटमेंट करवानी पड़ी, गवर्नमेंट से लैंड अलॉट हुई हमें, तो वो प्रोसेस भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और उसके बाद फिर टेंडर्स फ्लोट होना स्टार्ट हुए। तो मेरे ख्याल से 6 या 7 टाइम में दिस टेंडर गॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हेमंत, ये जो 2.5 करोड़ हम जैसे सुपर ECBC बिल्डिंग को दिया है, बहुत सारे स्टेट्स को, 13 स्टेट्स को हमने दिया है, उसमें से 5 या 6 स्टेट में अभी 3 में तो कंप्लीट हो गया है, अभी 2 या 3 में स्टार्ट भी हो गया है। बट जिनमें स्टार्ट ही नहीं हो रहा है वर्क, मतलब टेंडर, जैसे छत्तीसगढ़ में स्टार्ट ही नहीं हुआ, टेंडर ही नहीं किया उन्होंने, तो ये जो 2.5 करोड़ उनके पास पड़ा है, उनका इंटरेस्ट का क्या? इंटरेस्ट तो वापस करेंगे और उसको हमें वापस करना मंत्रालय। इंटरेस्ट तो आप वापस कर दीजिए, उसको ठीक है। हमें मंत्रालय को वापस करना। इंटरेस्ट तो बट ये शुरू कब होगा प्रोग्राम? सर हमारा कंस्ट्रक्शन का टेंडर फ्लोट नहीं हुआ है, हमने डिज़ाइन कंसल्टेंट हायर कर लिया है और डिज़ाइन प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही फाइनलाइज होता है इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द फ्लोटिंग द कंस्ट्रक्शन टेंडर। बिकॉज हमें भी अपने ऑडिट को रिप्लाई करना होता है। Yes, ma'am. कि आपने 3 साल से ये फंड दे दिया है, बिल्कुल। और यू आर बेसिकली तब दिया जाता है जब कंस्ट्रक्शन का प्लान सारा हो जाता है, तभी दिया जाता है। ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, पता नहीं कैसे दिया गया है।
सर जब ये प्लान हुआ था मैम बी में, तो इनिशियली 2.5 करोड़ डायरेक्टली क्रेडा हैड रिसीव 2.5 करोड़ फ्रॉम बी without any intimation. With a covering letter, we had received the grant of 2.5 crores. Without any demand. Yes, sir. Without any This demand. was the plan of B. कि we आपने will. आपने डिमांड ही नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया था मैम, आप चेक कर सकते हैं। बट हमें तो डिमांड तो हमेशा आता है, तभी तो नहीं सर, नहीं मैम, ये बी consent तो आपके यहाँ से आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया था क्रेडा के, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ शुरू से ECBC, Are you तो sure? हाँ आई एम श्योर मैम। हाँ तो हमें रिटिन में उनका कंसेंट तो चाहिए ना। तो आप एक काम जी। सर वो जो हमने जो 24 करोड़ का बना के दिया था, वो ये था कि आप एस्टीमेट दीजिए हमको। हमने जो आपको 2.5 करोड़ रुपए दिया है उसका एस्टीमेशन मांगा गया था हमसे, तो हमने फिर उसका एस्टीमेट बना के दिया था। लेकिन ये हमें डायरेक्ट कवरिंग के साथ मिला था कि बी इज़ प्लानिंग टू ग्रांट सैंक्शन फॉर दिस सुपर ECBC डेमो बिल्डिंग। मार्च 22 में दिया था, मार्च 22 में दिया था ये पैसा हाँ जी। आपको 2.5 CR का, तो विदाउट एनी डिमांड के दिया गया। यस ठीक है सर, अब अभी जो भी आपके प्लानिंग है एक होगा। बिल्कुल सर, वी आर इन प्रोसेस, वी हैव हायर्ड द डिज़ाइन कंसल्टेंट एंड वी आर वेरी सून विल फ्लोट अ टेंडर। इस ईयर में ये कंप्लीट होने का है चांस कुछ, मतलब इस ईयर में शुरू हो जाएगा काम? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो इसके जाएगा। ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला है आप कवरिंग लेटर के साथ में वो वापस बी को कर दीजिए, ठीक है। बी उसको मंत्रालय को श्योर वापस कर दें। श्योर। इसको एक लेटर भेज देते हैं जहाँ पे अभी सुपर ECBC बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें लेटर कि उनके जो भी इंटरेस्ट है उसको वापस करें। और हाँ देन एग्जैक्टली हम उनसे फिर एक डेडलाइन ले लेते हैं कि कब तक ये बिल्डिंग है। अदर देखिए, फंड को वापस लेना हमारा कोई इंटेंशन नहीं है जी कि फंड दे के, कल भी मैंने उड़ीसा को बोला है कि आप भी है कि सुपर ECBC बिल्डिंग, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि हर स्टेट में एक सुपर ECBC बिल्डिंग हमें शोकेस करना है। बिल्कुल। जैसे रिसेंटली इन चंडीगढ़ ड्यूरिंग द फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप उत्तर प्रदेश शोकेस देयर सुपर ECBC बिल्डिंग से आउटकम क्या है, उसमें वी गॉट सरप्राइज टू सी उनका EPI 100 समथिंग था, कुछ ये था, एंड नाउ इट इज़ 40+ समथिंग EPI। उनका जो सुपर ECBC, हाँ 120 या 140 नॉर्मल बिल्डिंग का EPI होता है और उनके बिल्डिंग का है 40+ EPI। सो वी जस्ट वांट टू शोकेस दैट दिस इज द आउटकम ऑफ द सुपर ECBC बिल्डिंग एंड ऑल द बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग्स जहाँ पे छोटे बिल्डिंग नहीं, बड़े बिल्डिंग जो जैसे 100 किलोवाट एंड अबव या 50 किलोवाट एंड अबव, तो उसमें दे कैन कंसिडर कंस्ट्रक्टिंग दिस काइंड ऑफ सुपर ECBC बिल्डिंग। तो ये हमारा इंटेंशन है, बट इफ द फंड इज लाइंग आइडल विदाउट एनी यूटिलाइजेशन देन देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज वी हैव टू रिप्लाई द ऑडिट एवरी ईयर कि आप कैसे ऐसे फंड दे देते हो और कोई यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है। तो उसका अभी भी वो पेंडिंग है, एक क्वेश्चन है UC के ऊपर, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए प्लीज़ आप आफ्टर गोइंग बैक यू प्लीज़ सेंड ए लेटर दैट व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, और उसका जो भी इंटरेस्ट है वो आप सरेंडर कर दीजिए सो दैट यू विल इंटरेस्ट वापस कर दीजिए और लेटर में मेंशन कर दीजिए कि हमने वर्क अवार्ड कर दिया है और ये मोस्ट प्रोबब्ली 1 और 3 ईयर। अभी RFP उनका टेंडर ही नहीं हुआ है, टेंडर करेंगे अब। हाँ, जो भी टेंडर कब करना है, कब तक, आप कुछ टाइमलाइन दे के वो लेटर। श्योर मैम, श्योर। नेक्स्ट so these are the implementation status ma'am. So ma'am, I would like to get to your kind notice that the cell has been established on 19th of May 2025 and still एक सेकेंड रोड मैप फॉर ECSBC is ENS not prepared. Why? Ma'am, for ECSBC roadmap is not prepared. Why? Because when the cell established,
Established on 19th of May 2025. हाँ, तो 19th ऑफ मे, नाउ वी आर सिटिंग एट 4th ऑफ जुलाई। Yes, and रोड still मैप तो 2 दिन में बनना है, कहाँ है आपका क्या भाई? रोड मैप बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। तो क्यों नहीं बना अभी तक? इस स्पीड से अगर हम काम करेंगे तो सॉरी टू से कि फिर 2 साल में हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। रोड मैप बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क है क्या? किसी का अप्रूवल थोड़ी चाहिए आपको, आपके पास सिस्टम है ना, कंप्यूटर है। रोड मैप बनाने में कितना टाइम लग रहा है? कल तक आप रोड मैप बना के भेजिए। कल सैटरडे संडे है ना, मंडे भेजिए आप रोड मैप बना के, ठीक है? मैम, आपके थ्रू वो बिल्कुल भेजेंगे। बिल्कुल मैम, एग्रीमेंट एक्चुअली अभी तक साइन नहीं हुआ है और तो एग्रीमेंट साइन ना होना के साथ काम का थोड़ी एग्रीमेंट 3 महीने में साइन होगा तो आपका काम भी 3 महीने में स्टार्ट होगा। actually ma'am, the thing is ki CREDA has conveyed the proper manner to how to get execute the agreement. So what CREDA wants ki first B will sign, since B is the first party, B has hired this ALSG, we are the third party, so we had conveyed the message ki first gets duly signed and sealed from B, get signed and sealed from your company, then submit it to CREDA. ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइनिंग इज ए डिफरेंट थिंग। Yes. वो तो इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। Yes. अब वो तो होता रहेगा ना, और आप जो बोलेंगे हमें सब मंजूर है। जी। बी पहले करेगा, हाँ हम पहले करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। हम आपके लिए सेल दे रहे हैं, पहले तो सेल को साइन करना चाहिए, एसडी को साइन करना चाहिए, फिर बी को करना चाहिए, बिकॉज बी इज द ओनर। बट आप पहले बी करेगा, हम कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। Yes. हर चीज़ में हम एग्रीमेंट है हमारा, जी। तो काम तो हो। फिर किसने बोला कि एग्रीमेंट का वेट करना है? एग्रीमेंट तो होना ही है ना। ये इस तरीके से अगर आप ही कोऑपरेट नहीं करेंगे एसडीए, तो फिर हम बिल्डिंग सेल से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर क्या 3 महीने तक 5 महीने तक आपने एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो दिस सेल विल बी सिटिंग आइडल, और हमारा पेमेंट तो हम नहीं देंगे उनको। Yes, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Yes, The agency has hired 3 people and they have sent to you कि ये काम हमने डिफाइन किया, ये करना है, टारगेट है उनके पास। Yes, ma'am. आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो आप ये काम हम अभी शुरू नहीं करना, ये कहाँ का है? नहीं, दे आर वर्किंग मैम, वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टिल नॉट सबमिटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स No, जस्ट बिकॉज you ऑफ asked them not to submit, that's why they have not submitted. यस मैम। So please don't do Sure, this. sure. हाँ, काम जैसे फ्लो में चलना है, काम करने दीजिए उनको। बिल्कुल। और क्यों नहीं अभी तक एग्रीमेंट आपने भेजा बी को? मैम, बी को हमने भेज दिया, हमको सबमिट हुआ है, हमने क्रेडा ने भेज दिया है, बी को नहीं भेजा है, हमने ALSG को डायरेक्टली सेंड किया है कि आप बी से साइन करा के वापस कहाँ क्रेडा है में सबमिट। एग्रीमेंट? एग्रीमेंट कहाँ है? मैम, डिस्पैच हो गया है क्रेडा से। अच्छा, तो आपने भेज दिया? क्रेडा ने भेजा है मैम, क्रेडा ने डायरेक्टली भेजा है दिल्ली इनके कंपनी को। अरे भाई साहब, आप लोग तो बहुत ही हर चीज़ में इतना डिले, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अब LCC उनको क्यों भेजना है? एग्रीमेंट में फर्स्ट ओनर बी है, सेकंड ओनर SDA है, बिल्कुल। ये ओनरशिप है क्या उनका? दे आर आवर एजेंसी ओनली। तो इनको क्यों भेजना है? हम सीधा आप हमें भेज देते, हम साइन करके आपको भेज देते, बात खत्म। But the instruction was that कि directly send it to ALSG and ALSG will get signed from B and then again it will submit to Chhattisgarh SDA. I can understand why the activities are not going on at the state level. You people know the tactics how to delay the activities. भाई छोटा सा है कि agreement, it's just a formality because you are also government, we are also government. Yes ma'am. तो ये कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है। You don't have any financial implication also. फिर भी आपको डर लग रहा है कि एग्रीमेंट साइन करने में? कुछ भी नहीं है आपके ऊपर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, जीरो। Yes ma'am. बी का एजेंसी है, बी पे कर रहा है, यू आर जस्ट द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कि आपको काम करवाना है उनसे। But the ma'am, the agreement gets authenticated only if the first party gets signed the तो हम agreement. कब मना करें कि हम साइन हाँ, नहीं that's करेंगे? what the same has been, the thing has been conveyed to LSD कि first get signed from B हाँ, then तो submit उनको it भेजने की to। क्या जरूरत है? आप बी को भेज देते हैं ना सीधा। हाँ, but the instruction was to send it to LSD, that's why। तो उनको मिला एग्रीमेंट। मंडे मुझे एग्रीमेंट चाहिए। मंडे आई विल बी इन द ऑफिस, आई विल साइन द एग्रीमेंट। मैं स्कैन करूँगी, आप लोगों को भेजूँगी
और फिर जो भी अप्रूवल लेना है इसी टाइम पे ले लो और 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा हार्ड कॉपी। बिल्कुल बिल्कुल। यू जस्ट साइन इट। कितने कॉपी भेजा आप लोगों ने, 1 या 3? 3 कॉपी लोगों ने। बस ये भी एक और एक पंगा है कि हमें पूरा ओरिजिनल चाहिए। बी के ऊपर तो किसी को भरोसा रहा नहीं शायद अभी। हाँ, सारे एजेंसी अभी 3-3 भेज रहे हैं। अब 3 इंटू कितना, 40-50 पेज, 150 साइन मुझे करनी पड़ती है। हमने ग्रुप में भी लिखा था कि आप एक ही भेजिए, आपको चाहिए ओरिजिनल, हम आपको भेज देंगे, हमें चाहिए नहीं ओरिजिनल। ओनरशिप पे आप लो, ये सब कुछ लो, बट काम दिखाओ बस। प्लीज़ इसको जल्दी कराइए और नेक्स्ट वीक आपके पास होना चाहिए एग्रीमेंट। और काम इसमें फिर क्या ही डिस्कशन करेंगे, आपका तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर हाई लेवल कमिटी इज फॉर्म्ड मैम इन कुछ आवर फायदा स्टेट। है क्या? हाई लेवल कमेटी, एक लेटर आपने भेज दिया, कमेटी का आ गया सर ये दीज आर द कमेटी मेंबर्स, उससे कुछ नहीं होने वाला। Rest all the tasks are still under process, ma'am, as the agreement is not signed, under process है। चाहे वो डेमो बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे ट्रेनिंग, दे हैव प्रपोज सम डेट्स कि हम इस डेट्स को बहुत सारे एसडीएस ने 3-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर भी लिया है। ओके। एंड विदाउट साइनिंग द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या, हम लोग कोई प्राइवेट पार्टी है जो आपको बी के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर भी बैठे हैं और हमें जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है। प्लीज कन्वे टू योर हेड कि बी का ये इनपुट्स है। बिल्कुल। और वो काफ़ी नाराज़ है हमारे ऊपर कि आप अभी तक उनको पेमेंट हम देंगे एंड दिस पीपल देयर इज नो आउटपुट। इट्स ए पब्लिक मनी इन्वॉल्व ना सर। यस मैम। हम लोग जो एजेंसी को पेमेंट करेंगे, बी का पेमेंट जाएगा, दैट इज ए पब्लिक मनी। पब्लिक मनी का हम कैसे मतलब मिस यूज़ करना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। उनकी क्या गलती है? उनको तो काम करना है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, तो देयर इज नो फॉल्ट एट देयर साइड। इन द बैकग्राउंड दे आर वर्किंग मैम ऑन एवरी ऑफ द। क्या होगा बैकग्राउंड में, क्या करें? उन्होंने ये बना के रखा है, बट अभी 2 महीना हो गया, कम से कम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेना चाहिए था उनको, रोड मैप फाइनल कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये सब एक्टिविटी तो हो जाना चाहिए था, कुछ बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था। They are going for department stakeholders. They are concerning with the stakeholders. तो आप समझ गए ना अभी? बिल्कुल मैम। तो आप विदाउट वेटिंग फॉर द एग्रीमेंट, यू प्लीज कोऑपरेट विद देम। श्योर। एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द एक्टिविटीज। श्योर मैम। सो दैट कि नेक्स्ट 1 मंथ यू हैव सम कंक्रीट रिजल्ट। श्योर। ठीक है? ओके मैम। बट आई रियली सॉरी बिकॉज छत्तीसगढ़ इज ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। छत्तीसगढ़ का मैं एसडीए देखती थी जी। इन माई 18 years कैरियर इन बी, मेरा एसडीए के साथ आई थिंक 10 साल का रिलेशन रहा है जी। और मैंने देखा है छत्तीसगढ़ वाज ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट एमंग ऑल दिस। ये अभी छत्तीसगढ़ का सिचुएशन नॉट गुड। श्योर मैम, प्लीज इम्प्रूव इट। हाँ, प्लीज इम्प्रूव। श्योर। बेस्ट। एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इसको कराइए जल्दी। ये तो मुझे यहाँ पे आके वर्कशॉप में पता चलता है ये सब चीज़ें। आप ईसीबीसी सेल में हो ना, तो आप क्यों नहीं इन्फॉर्म करते हो कि ये सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में? तो प्लीज इन्फॉर्म अस ना, वी आर देयर टू सॉर्ट इट आउट। हैं? टीम लीडर कौन है आपका? कौन थे? उनको बोलिए कि आज क्यों नहीं आए, मैडम पूछ रहे थे, वो मुझसे बात करें। नेक्स्ट कौन है? बिहार है? झारखंड? Good morning, everyone. I am Atul Nigam from Jharkhand SDA. Next slide.
Ma'am, start. Ma'am, this is our old status for ECBC cell. In September 21, the cell was established under the PwC PricewaterhouseCoopers is the cell over there. So we are working since beginning with 98 lakh was the initial work order which was sanctioned to the ECBC. Then after there is 2 extension. So total we got the 1.52 CR from the B. The estimated cost of the 2.23. But fund sanction was 80.37. हम लोगों के पास मैम पुराने बी के सेल्स का काफ़ी पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वो हमने इनका यूटिलाइज़ किया था. तो इनिशियली जो हम लोग का 98 लाख का जो वर्क ऑर्डर इशू हुआ था उसमें 50% पैसा ही हम लोग को रिसीव हुआ था, 50% पैसा वापस चला गया था, PFMS में आया था, वो वापस चला गया था. फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सटेंशन 1 का भी आया था, वो भी हमने वापस कर दिया था, बिकॉज मेरे पास फिजिकल फंड में पैसा अवेलेबल था ऑलरेडी पुराने सेल्स का, ताकि इनिशियली सिंस बिगनिंग हमारे पास PwC ही यहाँ पे अप्लीकेबल थे, सेल कर रही थी हमारे यहाँ. तो अभी भी हम लोगों ने उनका हम लोगों ने इनिशियली उनके पेमेंट क्लियर करने के लिए कोई अमाउंट नहीं चाहिए. अभी मेरे पास 39 लाख रुपीज़ पेंडिंग है अभी इसी बीच सेल का. हाँ, पुराने अकाउंट में, ओल्ड अकाउंट में जो PFMS में पैसा आया था वो हमने क्लियर कर दिया है. वो उससे पूरा 21 लाख के अप्रॉक्सीमेट आया हुआ था, तो वो मैंने उनका पेमेंट क्लियर कर दिया है. ये लास्ट इनवॉइस उनकी पेंडिंग बची हुई है, बिकॉज अभी जो नई सेल आएगी LSG ने हमारे यहाँ पे अलॉट हुई है, तो उनको जो हैंड ओवर करने के लिए आएंगे तो लास्ट पेमेंट उनका वहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा. हाँ, इतना कुछ वैल्यू कम है सर, कुछ वैल्यू कम है. तो जो कुछ एक्टिविटी बचेगी तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि आपसे अप्रूवल लेके बी से अप्रूवल लेके इसको जो ECBC की वर्कशॉप कुछ है हमें करनी है, उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको. नहीं, ऑलरेडी वी आर पेइंग द एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दोज वर्कशॉप्स. हाँ मैम, एक्चुअली में क्या होता है मैम, जो हम लोग का इशू है कि हम लोग क्या कोड भी नोटिफाई हो गया है, हम लोग क्या रूल्स नोटिफाई हैं, हाई लेवल कमेटी बन गई है. फिर बीच में जो ये सेल एक्सटेंशन नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा हाई लेवल कमेटी बनने के बाद जो अप्रूवल सिस्टम में इनकॉर्पोरेशन होना वो पेंडिंग बचा हुआ है. तो अभी हम लोग क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग का आर्किटेक्ट्स का हो जाता है. अभी क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे और कुछ और एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, आर्किटेक्ट एसोसिएशन, इसमें ये चीज़ों का अवेयरनेस कम है. तो हम लोग एक बड़ी वर्कशॉप करके जिसमें ताकि अभी होता है हम लोग जो बी से मैंडेट मिला हुआ है हमारे FP में, उसमें टॉपिक एक सिमुलेशन का एक वर्कशॉप होगा, एक उसका एनवेलप के लिए होगा. तो अभी जो कंसोलिडेट होता है टॉप टू बॉटम वाला जो रेशियो है, ताकि हम लोग अप्रूवल एनफोर्समेंट स्टेज में आ गए हैं. अभी भी होता है कि कुछ को इन्फॉर्मेशन दी, मतलब कुछ को ट्रेनिंग्स हुई है, वो सिमुलेशन में उनकी ट्रेनिंग हुई है, कुछ की बिल्डिंग एनवेलप्स के लिए हुई है. तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ वर्कशॉप ऐसी करें जिसमें कंसोलिडेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम 2 days वर्कशॉप का प्लान है हम लोग का, जिसमें जो भी मेनली जो प्राइवेट वहाँ पे आर्किटेक्ट्स ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के लिए, तो ये एक 2 day वर्कशॉप करना चाहते हैं हम लोग, जिसमें मतलब सिंस एनवेलप से स्टार्ट करेंगे और जो लास्ट पॉइंट है हमारा कैसे अप्रूवल सिस्टम में जाएंगे वहाँ तक करने के लिए. और इसमें हम लोग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे जहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली यही जो वर्कफोर्स जब बाहर आएगी तो ये हम लोग को सपोर्ट करेगी इस चीज़ के लिए. तो ये 39 लाख उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे मैम. इसमें से कुछ पैसा हमारे पास जो लास्ट इनवॉइस मेरे पास PwC की पेंडिंग उसमें जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 5 to 10 लाख रुपए बचेगा मेरे पास इसमें. तो अभी तक क्यों नहीं आपने इनवॉइस सेटल मैम अभी इनवॉइस उनका आ गया है हम लोग के पास, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग बचे हुए हैं जो उनके डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के हैं, तो वो अभी अंदर प्रोसेस है. जैसे ही वो क्लियर होगा वो ऑलमोस्ट सिर्फ उनके डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट का काम बचा हुआ है मैम अभी. और उन्होंने अभी लास्ट मंथ ही इनवॉइस सबमिट किया है, तो अभी जुलाई मिड में ही जमा किया, जून मिड में जमा किया था उन्होंने, तो अभी उसको प्रोसेस करने में बाकी 10 लाख से आप ये ट्रेनिंग में यूटिलाइज. हाँ मैम, ट्रेनिंग तो आप एक लेटर लिख दीजिए बी को. जी मैम, जी कि पहले तो उनका इनवॉइस सेटल कर दीजिए. हाँ मैम, उसके बाद ही जो पैसा बैलेंस बचेगा उसको हम एक वर्कशॉप की 2 day वर्कशॉप या 2-3 वर्कशॉप जितना भी बैलेंस हमारा पेंडिंग बचेगा उसको हम वैसे यूटिलाइज करेंगे. श्योर, ठीक है. और इसका UC भी भेज सबका सर UC पूरा क्लियर है सर हमारा. सर बी का हम लोग इंटरेस्ट भी पूरा वापस कर चुके हैं, और जितना भी हाँ इंटरेस्ट का पूरा वापस हो चुका है, और जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं जून तक मई लास्ट तक का वो सारा UC जमा हुआ है. जून में हमने स्टेट फंड खर्च किया तो बी से कुछ फंड आया नहीं था उसके लिए. तो एक रिक्वेस्ट है सारे SDS को कि जो भी UC आपने ऑलरेडी भेजा हुआ है, जी मैम, तो दोबारा से एक बार प्लीज़ मुझे हाँ, भेज दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. जी मैम. क्योंकि जो लास्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर इसको देख रही थी तो उसमें थोड़ा सा मुझे मिल नहीं रहा है उनको. नहीं मैम, लास्ट टाइम एक्चुअली मैम मेरी पंकज से ही बात हुई थी. UC जो हम लोग भेजते थे वो कभी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में जाती नहीं थी, वो हम लोग या तो फिनिक्स या विकास के पास जाती थी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाती थी. तो आप लोग के पास वो मिलेगा ही डेटा वाला शायद आपको, बिकॉज नाउ ऑडिट इज आस्किंग अस. जी. एंड वो हमारे पास नहीं आ रहा था तो इसलिए हमारे पास नहीं है. तो शायद इसी रीज़न है कि वो कंसर्न प्रोजेक्ट इंजीनियर के पास नहीं है वो UCs. तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट भेज, हम लोगों को एक साथ पूरा बंच बना के ही दिया हुआ, मैं आपको एक साथ व्हाट्सएप कर दूंगा. मैम उनका हाई लेवल कमेटी आप भी भेज दीजिएगा UCs.
मैम इसके बाद हम लोग का हाई लेवल कमेटी भी फॉर्मेशन हो चुका है, बट अब जो ECB है ECS BC के लिए हम लोग जब प्रोसीड करेंगे तो कुछ डिपार्टमेंट को मुझे उसमें ऐड करना होगा अभी। तो हम लोग जब अभी ECS BC का रोड मैप प्लान करेंगे तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स में एडिशनल इन्वॉल्व हो रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी वाला इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग इसी जो हमारी हाई लेवल कमेटी है इसमें मेंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे। और हमारे स्टेट का ये भी है कि हमने कई सारी कमेटीज़ हैं हमारी, जैसे रिवॉल्विंग फंड के लिए अलग कमेटी है, तो हम सारे को मर्ज करके एक कमेटी फॉर्म करेंगे। जब भी उनकी मीटिंग होगी तो एजेंडा फॉर्म में जाएगा कि एक स्टेट फंड खर्च करने के लिए कहाँ पे, जो रिवॉल्विंग फंड है जो SCCF उसके लिए, और ECBC का सिर्फ जो रिडर्सल वाला ग्रिवेंस वाला कमेटी होगा जो मैप अप्रूवल के लिए प्रोसेस, वो सिर्फ अलग होगी, बाकी सारा प्रोसेस हम हाई लेवल कमेटी में ही करेंगे। तो हम इसको हाई लेवल कमेटी बोलें या फिर स्टीयरिंग कमेटी बोलें, वो सेम प्रोविज़न में जाएगा ये। ताकि मैम अभी एक्चुअली में क्या उसमें मैंडेट ये भी कि हमको मतलब हर 6 मंथ में एक मीटिंग भी करनी है, तो हर डिफरेंट कमेटी की मीटिंग और वो सेम स्टेक होल्डर्स करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो जो मेरा स्टेट फंड है जो SCCF हम लोग यूज़ करते हैं रिवॉल्विंग फंड, उसके लिए ECBC के लिए हम एक ही कमेटी को मर्ज कर देंगे कि वो दोनों एक ही कमेटी की तरफ वर्क करेगी। और जब भी उनकी मीटिंग होगी तो हम एक ECBC का एजेंडा हो गया, ECS BC का एजेंडा हो गया, और दूसरा मेरा SCCF का अगर कोई बात होता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन स्टीयरिंग कमेटी के फॉर्म में करेंगे। और इसमें हाई लेवल कमेटी में जो स्टेक होल्डर इंक्रीज़ होने हैं, डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा और वाटर वर्क्स ऐड होगा, म्यूनसिपल ऐड होंगे, तो इनको हम लोग और इनरिच करके तो ये कंसोलिडेट हमारा हो जाएगा इसमें। और मैम मेरा ECBC कोड, रूल्स और बिल्डिंग बायलॉज तीनों चीज़ें इंकॉर्पोरेट हो गई हैं। सिर्फ अप्रूवल सिस्टम के लिए UDSD में मेरा गया हुआ है, उसमें इसलिए डिले हुआ क्योंकि सेल लास्ट टाइम हम लोगों के पास सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो चीज़ पेंडिंग है अभी। तो अभी तक नंबर ऑफ ECBC कंप्लायंट बिल्डिंग 20 क्यों है? मैम ये मेरी इस सेल की हैं जो अभी मेरा ECBC ने किया, उसकी बिल्डिंग्स। टोटल का हमने टोटल मांगा था आपको। मैम ये वाले बाद में क्या था, कुछ जब इनिशियली जब इस वाले सेल से पहले वाला टेन्योर था उसका कुछ बिल्डिंग को इशू हुआ, तो वो रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर्स के पास नहीं गई थी, वो हम लोग के पास थी, वो स्टेक होल्डर्स के पास नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो इसलिए वो मतलब हम उसको कंसिडर नहीं करते। हमने अभी 20 बिल्डिंग्स है मेरी ये, जिसको हमने भी किया हुआ है। नहीं, बट टोटल झारखंड का ECBC मैम कंप्लायंट 20 अभी 20 बोलेंगे, ताकि हम स्टेक होल्डर्स के पास रिपोर्ट नहीं गई तो इसलिए वो मतलब हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं। और मैम अभी हम लोग के पास क्या है मैम, एक चीज़ सपोर्ट मुझे को आपसे और चाहिए, ताकि हमने अभी झारखंड में हम लोग का जिस फेज़ से हम लोग ग्रोइंग स्टेज में हम लोग हैं, तो अब रिसेंटली झारखंड में जो फेज़ है डेवलपमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मोर देन 100 बिल्डिंग आइडेंटिफाइड हैं ECBC के लिए, जो इनका एक्शन हमारे पास उनका ड्राइंग्स आ चुका है, अप्रूवल आ चुका है। तो हम चाहते हैं जो करंट ECBC टीम उनके पास एक फिक्स टारगेट है कि आपको 10 बिल्डिंग्स करनी है, हर क्वार्टर में आपको 4 बिल्डिंग्स करनी। तो मैम हमको अगर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाता है जो, ताकि हमारे पास मोर देन 100 बिल्डिंग्स का आइडेंटिफिकेशन है मेरे पास, अगर वो आप थोड़ा सा हमें कुछ मतलब जो सिमुलेशन करके इन बिल्डिंग्स का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो मेरे पास मोर देन 100 बिल्डिंग्स में आपको 1 क्वार्टर मतलब आप कोई एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी असेसर को आप हायर कर लीजिए। मैम थर्ड पार्टी असेसर में प्रोसेस, उसका अप्रूवल सिस्टम का हमारा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा उस चीज़ के लिए, ताकि अभी एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग का आपने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, तो अभी क्या है जब वो आने ही वाला है तो फिर उसको इमीडिएटली हम कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करने में, फिर उसको दोबारा उसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा सा 1 साल के लिए तो आप ले ही सकते हो, क्योंकि 1 साल तो लग ही जाएगा जब तक कि पूरा बनेगा। अभी नोटिफिकेशन आया ही नहीं। मैम हम लोग का डिस्कशन हुआ था, जो UNDP का प्रोजेक्ट था लास्ट टाइम सौरभ सर के साथ, उस टाइम जब डिस्कशन हुआ था, जब UNDP के सेल फॉर्म अभी हम लोग क्या हो रही है, उसमें था कि उन्होंने कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाई किए, तो उसमें आई बिलीव उसमें झारखंड भी था, हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे, तो वो हमको बिल्डिंग सिमुलेशन में सपोर्ट करने का आई बिलीव उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न था। तो उन्होंने कहा था कि हम थोड़ा झारखंड को मोर फोकस करते हुए कुछ आपके यहाँ से बिल्डिंग्स ज़्यादा जो आपकी मतलब हाई लेवल की बिल्डिंग्स हैं, कोई हाई इंटेंसिटी बिल्डिंग है, उनको कंसिडर कर लेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट वैसे हो जाएगा हम लोग को। हाँ, उसमें देखते हैं उसमें कोई प्रोविज़न है कि नहीं, देखते हैं, अगर होगा तो डेफिनेटली हम। ताकि मेरे को लास्ट टाइम जब इनिशियल मीटिंग हुई थी अब्दुल्ला UNDP के साथ हम लोग की, तो उसमें ये इशू था कि उस टाइम पे झारखंड नहीं था इसमें। जब सौरभ साहब ने कहा कि सर ये चीज़ हम लोग के पास ऐसा बिल्डिंग्स आइडेंटिफाइड हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इस वाले प्रोविज़न में, और उस टाइम झारखंड नहीं था, उसमें MP था और UP था, तो झारखंड को भी उन्होंने ऐड किया था इसमें कि जो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी की बिल्डिंग्स हैं उनको हम इसमें कंसिडर कर लेंगे, फिर फर्दर इसको हम लोग का हो जाएगा। देख लेते हैं उसमें, आई थिंक झारखंड है। स्टार रेटिंग का थोड़ा नंबर बढ़ाइए आप। मैम मेरे पास 3 बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास इनका ऑडिट होकर हमारे पास आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। 5 बिल्डिंग का हमारा अंडर प्रोसेस है और आइडेंटिफाइड बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। जब सेल जैसे इस्टेब्लिश होगी तो उनके पास प्रीसेट वो टास्क रखे हुए हैं। अभी इतने टाइम जब तक सेल भी नहीं थी तो हम लोगों ने जो बैकग्राउंड वर्क था हमारा हम लोग करते रहे कि डेटा कौन सी बिल्डिंग आइडेंटिफाई, उनसे क्या पोर्टल से हमको डेटा लेना है, सारी चीज़ें हम लोग के पास हैं। अभी अब सेल जब इस्टेब्लिश होगी तो विद इन 2 मंथ के में मेरे पास सफिशिएंट डेटा होगा मेरे पास। और एक बार सेल एस्टेब्लिश हो गया तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर द साइनिंग। हम लोग एग्रीमेंट का वेट सब सिर्फ तब करते हैं जब हमें पेमेंट करनी होती है, उससे पहले हम पेमेंट करते हैं। एग्जैक्टली, जब तक या
बिल्कुल एक बार श्योर, क्योंकि अगर आ गए हैं लोग बैठे हैं आपके यहाँ और उनको आइडल बिठाना दैट इज़ नॉट द मेन. सो वंस दे आर एट योर प्लेस, जस्ट फ्रॉम द डे वन दे शुड स्टार्ट वर्किंग. मैम सिर्फ हम लोग को क्या है कि हम लोग वर्क कहीं भी हैम्पर नहीं होता. आपका आज का सेल एस्टेब्लिश सेल वहाँ पे बैठने शुरू कर नेक्स्ट डे से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. बट जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो मेरे पास एग्रीमेंट होना चाहिए, बस ये है. हाँ, दैट इज. हम वो भी सफिशिएंट टाइम होता है. आप उनको फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही पेमेंट करना होगा 10% भी, तो वो भी. और एक ECSBC का जैसे मैंने सबको इन्फॉर्म किया है कि आप जैसे ही सेल आपके यहाँ आ जाएगा, मे बी विद इन next couple of days the sale will be there. So please submit your draft ECSBC rules and code. मैम उसमें थोड़ा सा ताकि नया कोड जो अभी आया उसको अपने स्टेट के अंदर जो मैम हम लोगों ने क्या किया था, जब हमने ECBC कोड नोटिफाई किया था उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है हमने कि जो भी अपडेट्स होगा वो हम ऑटोमेटिक अडॉप्ट करेंगे. बस हमको इंटीमेट करना होगा. मतलब ये पूरा प्रपोजल जाएगा कैबिनेट तक, वैसे ही अप्रूव होगा, बट ये कि ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा उसमें. हाँ श्योर. तो ये हमने लाइन उसमें पहले ही मेंशन की हुई है कि ECBC एंड देयर अपडेट्स एज व्हेनेवर बी को रिलीज़ करेगा तो वो उसमें ऑटोमेटिक इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. तो हमको एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में नोटिफिकेशन तक मतलब प्रोसेस वही होगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रहेगा हमारा वो. तो आप ड्राफ्ट तो बना ही लीजिए ना 1 महीने में, तो वो तो होते होते तो 3-4 महीने लग ही जाएंगे उसमें. जी मैं हमने इसीलिए एक साथ ही तीनों चीज़ भेजी. जब हमारा ड्राफ्ट नोट रूल्स एक साथ ही चला गया था तो उसी टाइम पे हो गया. दैट इज द प्रोसीजर. जी दैट इज द करेक्ट प्रोसीजर. मैं अभी ECSBC की लिए बिल्डिंग, मैम जरेडा की बिल्डिंग पहले कर रहे थे, बट हम लोग को स्मार्ट सिटी में ऑफिस का शिफ्टिंग का हुआ है तो अभी इसलिए वो होल्ड पे है. तो सुपर ECBC बिल्डिंग आपने लिया ही नहीं? नहीं, अभी नहीं ली. फंड लिया है कोई? नहीं सर. बट इफ यू वांट यू कैन यू हाँ, शुड टेक वन बिल्डिंग. जी मैम बाकी तो न्यू सेल डिप्लॉय नहीं हुई इसलिए अभी. थैंक यू. Thank you so much. No problem. Maybe within 10 days or so the sale will be established for मैम Jharkhand. बस यही था. कल भी आपसे डिस्कशन हुआ था कि जो हम लोग का लास्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन बिल्डिंग्स भी जो कम हैं वो ये 24 बिल्डिंग जो हुई हैं ये लास्ट के 1 क्वार्टर में हुई हैं. देखिए इशू क्या था कि जो सेल थी हमारे पास उनके पास सिमुलेशन के लिए कोई पर्सन नहीं था, तो क्वालिफाइड पर्सन नहीं था. वो अपने सेंट्रल टीम पे डिपेंड थे. तो जब भी कई बार हम होता फास्ट ट्रैक में हमें चीज़ें करके देनी है, सपोज डिपार्टमेंट डिज़ाइन फेज़ में है उसका अप्रूवल के लिए जा रहा है, तो ये हमें एक लैगिंग था. इसलिए हमने कल आपसे रिक्वेस्ट भी की थी मतलब जो सिमुलेशन एटलीस्ट जो भी हो उस सेल में एक लोग को सिमुलेशन जरूर आता हो, ताकि इसकी वजह से ही मेनली डिले होता है सारी चीज़ें. नहीं सिमुलेशन तो आना ही चाहिए एक पर्सन को, दैट यू एंश्योर. एंड मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि योर ECBC हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है. तो बिल्डिंग बायलॉज में इनकॉर्पोरेट हो गया मतलब ऑल द न्यू बिल्डिंग्स विल बी कमिंग अंडर ECBC. यस मैम. और उनको ECBC कंप्लाइंट होना ही है. तो उनका सिमुलेशन कौन करता है, क्योंकि उनको भी तो मैम अभी अप्रूवल सिस्टम में नहीं ऐड हुआ है ना मैम वो. तो अप्रूवल सिस्टम में ऐड नहीं हुआ मैम तो इसीलिए अभी मैप फिर अप्रूवल क्या फायदा हुआ. आप झारखंड में देखेंगे अभी मैप अप्रूवल पेंडिंग पड़े हुए हैं. इसीलिए अभी वो जो उनका प्रोविजन इसी वजह से कई बार न्यूज़ में भी देखते हूँ झारखंड में मैप अप्रूवल सिस्टम में पेंडिंग मैप इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ECBC इनकॉर्पोरेट हो गया है. करने वाला स्टेट में कोई स्टेक होल्डर्स है नहीं और यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम में वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो इसलिए वो जो अभी बैकलॉग बना हुआ है वो इसी प्रोविजन की वजह से. तो क्या इसीलिए वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ अप्रूवल सिस्टम में कि कोई अप्रूवल करने के लिए कोई सिमुलेटर नहीं है अभी? मैम सिमुलेटर नहीं है, पहला रीज़न ये है. बट जो वेरीफायर वाली जो सेक्शन है हमारा वो हमारा ऑलरेडी रेडी है हमारे पास स्टेक होल्डर्स. तो हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही इंटेंसिव ट्रेनिंग में ट्रेन कर दिया था इस चीज़ को लेके कि आपको सिमुलेशन में क्या पैरामीटर्स देखने. आपको अगर सिमुलेशन नहीं भी आता है तो आपको किन किन पैरामीटर्स पे काम करना होगा, क्या क्या रिपोर्ट देखनी होगी, वो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेन मतलब डिस्कॉम के लोगों को भी किया, UDSG ULBs को भी हमने इस चीज़ के लिए ट्रेन किया हुआ. मतलब इंटेंसिव ट्रेनिंग की गई है जिसमें फ्रॉम एनवलप डिज़ाइन से लेके आखिरी में अप्रूवल कैसे होगा, प्लेन्थ लेवल पे OC कैसे, ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो अप्रूवल सिस्टम पर बैठना है जिन लोगों को उनके लिए रेडी हैं वो लोग. और हमारे पास स्टेक होल्डर्स भी उसी के रेडी. बट अभी क्या है जब तक अप्रूवल सिस्टम में ऐड नहीं होता है तो जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनका पेंडिंग ही इसी वजह से पड़ा हुआ है कि जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा अप्रूवल सिस्टम में तो उनको सिमुलेशन के थ्रू डेटा जमा करना पड़ेगा. इसलिए भी बैकलॉग है हमारे उसमें. तो अप्रूवल सिस्टम में ऐड नहीं हुआ तो क्या उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है? उनको तो नहीं मिल रहा है. पेंडिंग है सारा भी.
तो फिर अप्रूवल सिस्टम में क्यों नहीं ऐड हो मैम रहा अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रपोजल भेजा था, उनको जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम है उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसमें ऐड होगा, उसमें कुछ पेजेस ऐड होंगे, फिर उसके बाद फिर सेल का खत्म हो गया तो फिर उनको वो सपोर्ट, उन्होंने कई बार हम लोग को पूछा भी कि कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसलिए पेंडिंग की सेल नहीं थी हमारे पास लास्ट 6 मंथ से। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है जो उनके में, मतलब हमने उनको पूरा प्रपोजल दिया हो कि आपके में कौन सा पेज ऐड होगा, कौन सा फॉर्म किस वाले सेक्शन में ऐड होगा, प्लिंथ लेवल पे क्या जाएगा, कंस्ट्रक्शन लेवल पे, ऑक्यूपेंसी पे कौन सा जाना है, कौन कौन वेरीफाई करेगा। एक सबसे पहला इशू फंसा हुआ बिल्डिंग अप्रूवल का जो अथॉरिटी है, तो अभी ये हुआ कि जो भी एनर्जी ऑडिटर हैं या एनर्जी ऑडिटर हैं या एनर्जी मैनेजर हैं वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट अभी जब एनर्जी बिल्डिंग्स का हो जाएगा और ये हमारा अप्रूवल सिस्टम में ऐड हो जाएगा ये चीज़, तो उसके बाद फिर ये चीज़ प्रोसेस होगी। बट अभी सेल नहीं होने की वजह से ये अभी बीच में हम लोग का वो है, चलिए गैप है। सेल तो हो जाएगा बहुत जल्दी। आप एक पैरेलली दोनों काम करिए कि एक तो ये बिल्डिंग अप्रूवल में इसको डलवाना है, सेकेंड थिंग आप असेसर्स का लिस्ट बना लीजिए जी जो दोज विल हेल्प द ओनर्स। बिकॉज ये जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि ऑल द बिल्डिंग्स विल बी नाउ कमिंग अंडर ECBC ECBC, compliance। तो सारे बिल्डिंग आएंगे, तो ये 7-8-10 बिल्डिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करके मतलब नहीं, मुझे भी कुछ समझ मैम। में नहीं आ रहा है। मतलब आई एम फ्रॉम बी, बट अभी मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है वो, क्योंकि इतने सिर्फ हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं जस्ट टू शो केस द बिल्डिंग ओनर्स, अदर बिल्डिंग ओनर्स। आई थिंक बी का यही मोटिव था। तो इसीलिए वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के हमारा वो टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है कि ऑल द बिल्डिंग्स शुड बी ECBC कंप्लायंट। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दिस इज ओनली द शोकेस बिल्डिंग्स की, इसको हमने हेल्प हमारे किया। पास मोर देन 100 बिल्डिंग्स का मेरे पर नॉमिनेशन भी रखा हुआ है, बट एक बार जब सेल हम लोग का फुल फ्लैश में स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग का उसको टेकअप कर लेंगे। हाँ, तो सारे ECBC बिल्डिंग का सिमुलेशन आप क्यों करोगे? वो तो नहीं, अपने आप वो अपने करेंगे, आप ही करना होगा। खाली आपको उनको लिस्ट प्रोवाइड करना जी है मैम। कि दीज आर द असेसर्स या फिर दीज आर द ये जो मैन पावर है जो जी कि उनको हेल्प कर सकते हैं फॉर द सिमुलेशन। तो आपको डायरेक्टली उनको सिमुलेशन उनके लिए करने की जरूरत नहीं। हम इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकते, मैम रैंडमली उनको सपोर्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बिल्डिंग से कोई सपोर्ट मांगता है। तो बाकी मैम ऑल दो सभी भी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हम लोग के यहाँ बन रही, CPWD के थ्रू बन रही है या पब्लिक वर्क्स के डिपार्टमेंट, तो वो मैम ऑलरेडी ECBC को कंप्लाइंसली फॉलो करते हैं उस चीज़ को। और जो नई प्राइवेट बिल्डिंग्स आ रही हैं वो आर्किटेक्ट के थ्रू जब करते हैं तो वो मिनिमम कंप्लाइंस एरिया में ECBC का वैसे ही आता है, जो हम सस्टेनेबिलिटी वाले के तो अभी ऐड हुआ है। जो ECBC कंप्लाइंस प्रोविजन है वो तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, तो आर्किटेक्ट जब उनको ड्राइंग देता है तो वो कंप्लाइन करके पहले ही देता है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग मास्टर ट्रेनर्स है उनको तो सिमुलेशन आता होगा मैम एनर्जी और हाँ मास्टर ट्रेनर्स मैम सभी को नहीं आता है, जो मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या कुछ आर्किटेक्ट्स हैं उनको आता हाँ। है, मतलब सबको सिमुलेशन नहीं आता। तो एक- मतलब वो प्रेजेंटेशन सब दे देते, समझा सब देंगे, बट जो एक्चुअल सिमुलेशन करके उसका आउटपुट वाला है वो सब लोग नहीं करते हैं तो उसमें। एक जो से आप एक एडवर्टाइजमेंट अगर पेपर में निकाल के एक एम्पैनलमेंट तो कर ही सकते हैं कि झारखंड में जिन जिन को सिमुलेशन आता है तो उनका एक लिस्ट आप पॉपुलेट कर सकते हैं। हाँ मैम, ये तो कर सकते उनका उस लिस्ट दैट लिस्ट विल हेल्प द बिल्डिंग ओनर्स टू टेक द हेल्प ऑफ दो सिमुलेटर्स। yes, तो वो कर लीजिए ठीक जब है, तक इस कि पे हम एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग नहीं बना लेते। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो तो सारे स्टेट्स को करना ही पड़ेगा अपने स्टेट के लिए। जी मैम जी। क्योंकि अगर हम ये एग्जामिनेशन कर भी देते हैं जो भी एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग आएगा आपको अपने स्टेट के लिए उनको वो करना पड़ेगा। एम्पैनल करना पड़ेगा, तो वो कर लीजिए सो दैट कि वो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। Now I request all the officials to proceed for a tea break. And the officials, those who have not done the registration, are kindly requested to do the registrations. अच्छा
Now, we would like to move forward for the next presentation. Next presentation will be done by Bihar. I request the officials from Bihar to come here and do their presentation. Hello. Good morning to all of you. Myself, Pradeep Kumar, Superintendent Engineer from Breda, Bihar. I have recently joined to Breda. Earlier, I am working in DISCOM. And I am looking after the work of BE related all the things. मैडम, हम लोगों ने बिहार में लास्ट टाइम अभी ECBC नोटिफाइड नहीं हो पाया था, लगातार वहाँ पर सेक्रेटरी साहब का लगातार ट्रांसफ़र वगैरह की वजह से रुक गया। उस समय कैबिनेट में जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली गया नहीं वो। सर पहले हम यस मैम, इसमें यूटिलाइजेशन पे बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अबाउट 19 लाख आपके पास पेंडिंग है। यस मैम। और एजेंसी का इन्वॉइस भी अभी सेटल नहीं हुआ है। तो एजेंसी को कितना देना है अभी आपको पेमेंट, कितना करना है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं मैम, देख लेते हैं मैम इसको। हाँ, तो जो भी एजेंसी का कौन एजेंसी था? LSG, ओके, यहाँ पे है उनका? अच्छा, वो AII LSG कोई है क्या वहाँ यहाँ पर उनसे? नहीं है वो। अच्छा, और नहीं है उनका बिल्डिंग सेल से कोई है? GT? नो, AII LSG। तो उनसे सर आप बात कर लीजिए ओके मैम। कि जो भी है इन्वॉइस अभी नेक्स्ट 10-15 डेज में उनसे मंगा के सेटल कर दीजिए, बिकॉज यू शुड नॉट कीप इट पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये आपका जो PFMS में दिखा रहे हैं 23 लाख और यूज़ किया 27, ये आपने ज़्यादा कैसे यूज़ कर लिया PFMS में? तो वहाँ तो फंड इन यूज़ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता ना, माइनस बैलेंस है। 23-34 का आपको सर उसका इंटरेस्ट होगा वो पैसा? नहीं, PFMS में तो इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो फंड इन PFMS लिखा है आपने, ये फंड अभी बचा हुआ है हमारे पास वो फंड? नो सर, ये तो लास्ट ईयर का होगा। लास्ट ईयर में जो है ना 24-25 का होगा, जिसमें आपने लिखा 23-34 आपको मिला है। तो ठीक है, ये 23-34 मिला, उसमें से 26 आपने यूज़ कर लिया। PFMS में ज़्यादा थोड़ी ना यूज़ कर लोगे आप। ये इसको थोड़ा चेक करना प्लीज़। हाँ, अपने यहाँ पे चेक करा, चेस कर लेते हैं। आपका कुछ पेंडिंग है बिहार SDA में, तो क्यों सेटल नहीं कर रहे हैं? हाँ, सारे इन्वॉइस भेज दिया है। कितने अमाउंट है? 26 लाख। तो अगर उनका सर 26 लाख पेंडिंग है और आपके पास 19 लाख कुछ बैलेंस है, तो आपको और 6-7 लाख बी से चाहिए। मैम इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं देख लेता हूँ इसको, 15 दिन में करवा दूंगा मैं इसे। हाँ, हमारे ठीक है। ओल्ड फंड है क्या जो बैलेंस की बात कर रहे हैं? बैलेंस सर अमाउंट बैलेंस 3,53,000 पिछला बार का होगा मैम। ये तो माइनस है ना, आपका 23 आया था, 26.87 आपने यूटिलाइज किया, तो माइनस है ना आप, इसलिए। तो ये थोड़ा सा कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं है। Yes. जैसे आप कह रहे हैं अमाउंट बैलेंस 16.61, ठीक है, और यहाँ पे -3.53, तो बैलेंस तो आपके पास 13 लाख होना चाहिए। ये 13 शायद यहीं पे आ रहा है, 1308 नहीं, यहीं पे आ रहा है वो 13 लाख, 13.08, और 6 लाख शायद पहले का ही है। ठीक है सर, माइनस में होना चाहिए था उसको मैम। नहीं, हाँ वो माइनस में Yes, है, तो टोटल अभी, अरे वो मिनल फ़ोन कर दी। तो ये तो समझ में आ गया कि 13.08 आपका बैलेंस है, और जो 6.06 है वो शायद पीछे से आ रहा है, पीछे पहले का कोई बैलेंस होगा। तो इसका मतलब आपके पास अबाउट 90 लाख का पेंडिंग है। तो इनका जो 26 लाख है, इमीडिएटली उसको जाके आप
जितना भी आपको चाहिए उसका देख लीजिए, थोड़ा स्क्रूटिनी कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए बिल सबमिटेड है मैम। सर बिल तो सबमिटेड है, लेकिन सबमिटेड है, और वो भी उसका जो यूटिलाइजेशंस की डिटेल्स आपने जो मांगी थी मेल पे, वो भी हमने उनको कन्वे कर दिया था आप लोगों को। बिल तो सबमिटेड है, लेकिन आपको बी से भी तो फंड चाहिए होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो थोड़ा जाके सर इसको कर लीजिए जो जल्दी। डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लोग 20 के रिक्विजिशन भेज देंगे मैम, और इसको और करा देंगे जल्दी 15 सर, दिन में। जल्दी Yes, ma'am। विद इन ए वीक। हाँ, ये जो फंड यूटिलाइज आपने कर लिया है उसका यूसी नहीं आया हमारे पास, भिजवा देंगे मैम। से आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए, यस। ठीक है? प्रायोरिटी पे रखना। क्या? हम लोगों ने हाई लेवल कमेटी 2022 में ही इसका कमेटी का फॉर्मेशन कर लिया था। ईसीबीसी नोटिफिकेशन के लिए कैबिनेट जाना था, पर वो उस समय हो नहीं पाया है, इसलिए पेंडिंग रह गया मैम। तो सर इसका मतलब बिहार में अभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं कौन है हुआ है, ईसीबीसी मैम। सेल? एग्जीटी अभी Yes। क्या आपका क्या स्टेटस है? 28 मई से इन्होंने शुरू किया है मैम वर्किंग करना। आपका टीम मैनेजर कौन है? कहाँ है कुलभूषण जी? क्यों नहीं आए? हाँ, नोट करो उनको। तो आप अभी तक बताइए क्या क्या आपने इनिशिएट किया है? मैम, एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क प्लान हमने सबमिट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग क्वार्टर वाइज डिलीवरेबल्स, लाइक डिलीवरेबल नंबर 1, उसमें सबमिशन ऑफ रोड मैप का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हमारा रेडी है। इट इज़ येट टू सबमिट। मैं कल या फिर मंडे को उसे सबमिट कर दूंगा। फर्दर हाई लेवल कमेटी का जो फॉर्मेशन होना है, उसमें जो चेंजेस किए हैं, हमने ऐड ऑन किया है, उसका भी डॉक्यूमेंट हमारा रेडी है, वो हम मंडे को सबमिट कर देंगे। वो ऑलरेडी फाइल में पुटअप है मैम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर ट्रेनिंग, एंड वी हैव टू कंडक्ट वन अवेयरनेस ट्रेनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। वो बाद की बात है, पहले आप बताइए ईसीबीसी नोटिफिकेशन के लिए आपने क्या अभी तक 2 महीने में क्या किया है? Ma'am, the cell has been established on 28th of May 2025. So that's why. 1 month only. Yes, ma'am. तो पहले तो आप ईसीबीसी नोटिफिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा आपको। We are preparing draft document for that, ma'am. तो ईसीएसबीसी, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है अभी। Yes, ma'am. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बिल्डिंग बायलॉज में कैसे यस हो गया? एक्चुअली एक पर्टिकुलर लाइन उसमें ऐड हुई है कि एक्चुअली मैं बता रहा हूँ मैम, वो ईसीबीसी क्या था कि फाइनल स्टेज में हो गया था, सिर्फ कैबिनेट जाना था, कैबिनेट नोट भी बन गया था, और कुछ बिहार में मिसहैपनिंग हो गया था सीएमडी साहब के साथ, तो एनर्जी सेक्रेटरी के साथ, इसलिए नहीं जा पाया वो। और इसका कॉपी चला गया था बिल्डिंग बायलॉज में, इसलिए बायलॉज में वो निकल गया कि जब नोटिफाई हो गया तो वो मान लिया जाएगा, इसलिए वो। फिर भी बायलॉज में हो भी गया, अगर हम लोग notify नहीं हुआ कोशिश तो करेंगे मैम, ईसीबीसी जो हमारा नोटिफिकेशन के लिए बचा हुआ था उसको हम लोग भिजवाएंगे। हाँ, तो अभी मत भिजवाइए, 1 महीने 2 महीने लेके ईसीएसबीसी जाना चाहिए। ओके ओके, ईसीबीसी आप मत भिजवाइए। नहीं भेजेंगे। जो ईसीबीसी आपने भेजा था उसमें बस ईसीएसबीसी चेंज कर दीजिए उसको, ओके ओके, क्योंकि दोबारा फिर ईसीएसबीसी करने में आपको 3 साल और लग जाएंगे। यस मैम। ठीक Sure, है? ma'am, sure. तो ईसीएसबीसी करके उसका रूल्स और ईसीएसबीसी कोड दोनों इसी महीने के एंड तक आप एसडीए से अप्रूवल लेके आगे फॉरवर्ड करिए। यस मैम। उस पर पैरेलली आपको काम करना पड़ेगा। बाकी जो आपका टारगेट है उसमें तो काम करना ही है। Yes, ma'am. मेजर टास्क हमारा यही है। जी मैम। पहले नोटिफिकेशन होना जरूरी है। जी ठीक है जी सर। स्टार रेटिंग बिल्डिंग बिहार में 3 में हम लोगों ने किया है मैम, लगभग 1400 समथिंग में ईसीएसबीसी कंप्लाइड हमारा बिल्डिंग होने जा रहा है, जिसमें कि कॉमर्शियल बिल्डिंग है 100 किलोवाट एंड एबव, और ये सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसमें हम लोग आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ईसीएसबीसी का। गृह सर्टिफाइड बिल्डिंग है 64 बिहार में मैम, इसमें आ नहीं रहा इसमें है नहीं दिया नंबर। हुआ है, वो लास्ट में अपडेट हुआ है इसलिए मैम। नेक्स्ट जो हमारा रीजनल वर्कशॉप होगा, Yes, ma'am. आप लोगों के साथ जब मुलाकात होगा तो मुझे हमारा रेटिंग उनसे ज़्यादा चाहिए। यस मैम।
बी का रेटिंग दिखना चाहिए हमें, क्योंकि सेक्रेटरी पावर का ये प्रेशर है मेरे ऊपर कि बी स्टार रेटिंग बहुत कम क्यों है। तो ये हमारे ECBC सेल से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें उनके रेटिंग से ऊपर जाना है और उनको हमें बताना है एक्चुअली बिल्डिंग ओनर्स के इट्स नॉट लाइक ए किड्स कंपटीशन, इट्स लाइक ए एक्चुअल रियल कंपटीशन, क्योंकि जो एनर्जी कंजम्पशन जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अब कहीं पे छोटे छोटे चीज़ मेजर करके वो दिखा देते हैं कि हम लोग रिहा कंप्लायंट है, ये है वो है, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन जो रिड्यूस हो रहा है बिल्डिंग का, उसमें वो नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। जी मैम। ठीक है, तो हमारा रेटिंग को हमें और पॉपुलराइज करना पड़ेगा। जी मैम, श्योर। और आप भी सर थोड़ा कोशिश करिए, अगर सुपर ECBC बिल्डिंग कोई हम बिहार में बना सकते हैं तो। यस मैम, ज़रूर। क्योंकि अभी 5 करोड़ बी सपोर्ट कर रहा है, तो यू शुड टेक दिस एडवांटेज। ठीक है मैम। ECSBC सेल का गठन 28 मई को हुआ है मैम, वहाँ से सेल वर्किंग करना शुरू किया है 20 मई से। आपका एग्रीमेंट अंडर गोइंग है मैम। वो एग्रीमेंट थोड़ा जल्दी आप साइन कर लीजिए, अदरवाइज देंगे। पेमेंट नहीं हो पाएगा। एक आध सप्ताह के अंदर में करा देंगे, फाइल डायरेक्टर साहब के पास गया हुआ था वो। जी, क्योंकि करवा आप देंगे। जितना हम लेट करेंगे उतना पेमेंट में उनको डिले होगा। यस मैम। मंथली रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया है, जो कि हम लोग अभी forward भी रिसेंटली किया है। पंकज ने आप सबको एक एक्सेल शीट शेयर किया है, जिसमें कि मंथली रिपोर्ट के साथ एक्चुअल जो क्वांटिफाइबल नंबर से कितने बिल्डिंग्स आपने आइडेंटिफाई किया है, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया है, उसके साथ वो शीट भी आप लगा के भेज दीजिए। चाहे अभी कुछ भी नहीं है तो नील कर दीजिए, 0 कर दीजिए, बट दैट वुड एक्चुअली हेल्प अस टू क्वांटिफाई। यस मैम। ट्रेनिंग का शेड्यूल ने इन्होंने दिया है मैम, वो हम लोग कराएंगे, ये हम लोग का शेड्यूल है ये। वेरी गुड। हम लोग का प्रोग्राम है 9 मई को एक कराने का वहाँ पर पटना में। ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑनलाइन तो एक दिन का 2-3 घंटे की बात है, ऑनलाइन ट्रेनिंग करने में इतना क्या आपको डिले होगा? एक्चुअली मैम एग्रीमेंट की वजह से हम लोग फिर वही बात, एग्रीमेंट को नहीं, मैडम ने अभी बोल दिया है कि एग्रीमेंट नहीं वेट करना है। मैंने सारे SDA को इन्फॉर्म कर दिया है, एग्रीमेंट में टेक टाइम बट वर्क शुड नॉट सफर। ओके मैम। और ये ऑनलाइन तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर मुझे पूछो तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर नॉट, हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल, क्योंकि ये ऑनलाइन आया है, RFP में ऑनलाइन था, दैट इज़ गुड थिंग दैट ये ऑनलाइन करेंगे बिकॉज ऑनलाइन का कंसेप्ट चला आ रहा है। बट इफ़ यू सी ऑनलाइन इज़ नॉट दैट इफेक्टिव एज ऑफलाइन। फिजिकल होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा, जिसमें आप वहाँ पे प्रीमाइजेस में जाके कर लीजिए, या कुछ ऐसे करिए जिसमें आपका कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा जी, आपको जाके बस ट्रेनिंग देना है जी। क्योंकि ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसमें इट्स नॉट लाइक कि जितना आपको टारगेट दिया गया है बी ने उतना कर दिया, इतना मेजर करके करना, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दिस, बिकॉज फ्रॉम आवर साइड वी आर गिविंग यू फुल सपोर्ट। अभी तक वी आर बिहाइंड यू टू साइन द एग्रीमेंट। आप देखेंगे मैं हर वीकली में डालती हूँ कि एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, पंकज से डलवाती हूँ कि जल्दी जल्दी। ऑनलाइन को हम लोग रिशेड्यूल कर देंगे मैम, और पहले करा लेंगे इसको, तो ऑनलाइन कर लीजिए, फिर उसी को ट्रेनिंग ऑन 9th of July इज फिजिकल ट्रेनिंग अवेयरनेस। या अच्छा, वो फिजिकल है? यस मैम। ऑनलाइन एक कंप्लीट हो गया क्या? No ma'am, there are total number of trainings in which one is online and other 4 is physical. अब देखिए 12 अगस्त तक क्यों वेट करना आपको ऑनलाइन करने के लिए? Yes ma'am. उसको कभी भी जुलाई में कर लीजिए जी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन कंप्लीट कर दीजिए। ओके मैम, श्योर। अगर है तो आपको करना ही है, क्योंकि आज ही सजेस्टेड, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि उस ऑनलाइन को आप ऑफलाइन में कन्वर्ट करके कर लीजिए। ओके मैम, श्योर। ठीक है। नेक्स्ट सर।
एनीवेज आपका तो 1 मंथ ही हुआ है। यस मैम। एक्चुअली कुछ अभी तक हुआ नहीं है मैम वहाँ। अभी सिंस दे आर हियर, जीटी के कुलभूषण जी को बताइए मुझसे बात करें। Yes, ही शुड हैव बीन हियर। यस ठीक है, क्योंकि हमें जब बी बुला रहा है आपको कि इसे यहाँ पे होना चाहिए तो यू हैव टू बी हियर। यस थोड़ा स्टार्टअप करना है तो इनको भी थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा आप लोगों को। Yes. अदरवाइज क्यों हम लोग इतना ज़्यादा फंड पब्लिक मनी को क्यों दे रहे हैं एजेंसी को? crores of rupees we are spending, यस मैम। crores of rupees, Yes. and all these crores of rupees are the public money. तो हम लोग पब्लिक मनी को स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हमारा डिलीवरेबल ऐसे ही नहीं होगा, जैसे मुझे किसी एसडीए से कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, यस मैम। ठीक है। अगर कोई एसडीए कह रहा है कि ये सेल एक्टिव नहीं है तो फिर उस सेल को वहाँ बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यस मैम। तो टाइमलाइन थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि बिहार ये मत सोचिए, थोड़ा माइंडसेट चेंज करिए कि बिहार है तो हर चीज़ डिले होगा, झारखंड है तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है। नाउ दे आर वेरी मच, ऑल स्टेट्स आर वेरी मच एक्टिव, दैट ओल्ड वो नहीं रहा सिचुएशन। जी मैम। अभी देखिए झारखंड कितना अच्छा, उनका प्रोग्रेस कितना अच्छा है। जी। तो फिर आपको भी ऐसे ही पेस में काम करना पड़ेगा। विल टेक केयर ऑफ इट मैम। थैंक यू। नेक्स्ट 1 मंथ में आप मुझे रिपोर्ट करिए क्या क्या अभी तक होगा। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू you, सर, ma'am. थैंक यू। Thank you for the presentation. Next presentation will be done by officials of Odisha. I request sir to come here and give the presentation. Thank you. Good morning to all. I am Sri Sayom Vishnu Shankar, Superintending Engineer, SD Odisha. Madam, this is regarding previous cell, Terry, and all the UCI have been already submitted. Yes, madam. अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड में 15 लाख अभी है, तो आपने लेटर भेजा है भी को? Yes, madam. तो शायद वही वाला है जो हमने एक्चुअली आपको शायद मार्च में पूछा गया होगा कि आप यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। नहीं मैडम, ये एक्चुअली जो टेरी के साथ कुछ डिस्प्यूटेड था, टेरी को अच्छा, हाँ, उसी फंड के तो लिए। हो गया वो। ये तो हम बी को फिर सेंड करके मिनल मैडम को बोला था और सेंड करके दिया है, अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया वो। नहीं, हमने तो ओके करके भेज दिया था, जो आपने भेजा था ना, जो आपका इनपुट्स भेजा था उसमें हम अपना इनपुट्स इसमें सिर्फ लिखा गया था कि आपके हिसाब से मतलब जो भी है कर दीजिए, तो फिर उसी हिसाब से दिया गया है मैडम। तो फिर अभी बी से अब कुछ आपको वेट करने की जरूरत है? फंडिंग ठीक है मैडम, नहीं, फंडिंग आपको बी से चाहिए। नहीं, फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हम लोग ये बोले थे कि हम लोग का एक फंड है जो पिछले सेल का था, ग्रीन ट्री के रिगार्डिंग 25 लाख के आसपास कुछ है, तो उसी में से हम लोग ये 50 लाख पेमेंट करने के लिए सोच रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग मांगा गया था। बैलेंस फंड विद एसडीए में आना चाहिए वो 25 लाख। बैलेंस मतलब वो ओल्ड अकाउंट फंड में था। तो हमने तो पूछा है प्रीवियस बिल्डिंग सेल, हमने ये तो नहीं कहा कि ये अगर ये इसने लिख दिया है तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है हमारे साइड से, बट आपको यहाँ लिखना चाहिए था बैलेंस फंड विद एसडीए, मतलब जो भी बैलेंस है बिल्डिंग के अंडर में, जो भी बैलेंस है आप इसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है मैडम। तो अगर 25 लाख मैडम वो सर, हाँ, आप इसमें रिफ्लेक्ट कर दीजिए 25 लाख, और ये जो 15.48 लाख है उसमें वो उनको पेमेंट कर दीजिए जल्दी। ये क्या आपने पीएफएमएस में गया था? हाँ, ये पीएफएमएस होगा ना ये सर? नहीं, ये वही डिस्प्यूटेड था, और कुछ लास्ट टाइम में पेमेंट आया था, तो डिस्प्यूटेड था इसलिए पेमेंट नहीं हुआ तो उस टाइम में। तो आगे से ना वही डिमांड करी जाए जो रिक्वायर्ड। नहीं, क्या हुआ कि उस टाइम टेरी का कुछ डिस्प्यूट जो बिल क्लेम किए, तो डिस्प्यूटेड था, तो हम लोग मीटिंग एक हुआ था, बी के साथ मीटिंग हुआ था,
तो उसमें बोला गया कि आपका जो भी सजेशन है जो भी है आप लिख के भेजिए, और जो टेरी उनको बोला गया था कि आपका भी भेजिए, तो दो को कंपेयर करके एक व्यू देने वाला थे बी, तो आपको उसके बाद ही ये आपका जो भी डिसीजन है आप ले लीजिए और इसको जल्दी से। ठीक है। हाँ यस या यू हैव सेंड बट बी हैज नॉट रिप्लाइड। हाँ आप मुझे भेज दीजिए ना कॉपी, हम उसका कंसेंट दे देंगे, आप उससे बिल्कुल इसको रिलीज करके वो फंड को 10 लाख फिर भी बचेगा आपके पास। हाँ वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा क्या? वो तो अभी जैसे ये वर्कशॉप हो रहा है इसमें 10 लाख बी ने आपको दिया है, अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें से भी वो यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है मैडम। इस तरह उसको फंड को यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है नेक्स्ट। ये ECBC नोटिफिकेशन रीडिंग मैडम, ये ऑलरेडी 2022 में ये नोटिफाइड हुआ था रूल एंड कोड, बट ULB दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये सर इसमें अप्रूवल प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं हुआ क्या? अच्छा जो आप कह रहे थे वही प्रॉब्लम है। ओके ओके, दोबारा इसको हमें बिल्डिंग बायलॉज में करना। हाँ यस यस यस। Okay, that we have already discussed. Yes, we are trying to do. रोड मैप अभी तक क्यों नहीं सबमिट हुआ? रोड मैप एक्चुअली मैडम हो गया है, वो सबमिट किए हैं, अभी अंडर प्रोग्रेस है हमारे। अच्छा उन्होंने सबमिट कर दिया है? अभी तो रजिस्टर आप किया। नो की जगह येस कर दीजिए ना, मतलब बन गया हम लोग अप्रूव नहीं किए तो मतलब Okay. सार के थ्रू अप्रूव नहीं हुआ तो बिकॉज दिस इज द स्टेटस ऑफ द ECBC सेल। अगर नो मतलब उन्होंने नहीं किया, हाँ तो येस मतलब उन्होंने अपना काम कर दिया, अभी पेंडिंग एट योर एंड, यस सर। तो आप इसमें येस कर दीजिएगा। और सर हाई लेवल का इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का तो बना लीजिए जल्दी। यस सर। ऑलरेडी दे रिवाइव जस्ट। हाँ ओके या इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी बात हो गई है तो ओके 13 जून को सबमिट हुआ है वो। ओके श्योर ठीक ठीक। Madam, this number, so we had already identified for star rating building, ECBC component and ECBC component. This is and already we have already completed one training program. On next we are planning for the. So these training programs are okay, like based on the targets set by BEE. In case SDA has some other targets and only the manpower agency, I mean the cell agency manpower will be utilized. Like there is no involvement of cost for the agency. In that case also you should not hesitate to actually do this kind of programs. Like suppose SDA ask you कि आप यहाँ पे SDA will organize, SDA will gather some like some department request SDA has received, and SDA will ask you to please go and give them 2 hours training on ECSBC. So that also you should not hesitate to do. हाँ बिल्कुल. Yes, madam. Apart from BE fund, we are also organizing for the state fund regarding this. Yeah. In college level or other. Or, yes. Yes, sir.
And this is regarding the star rating process. Already identified these numbers, and we are also discussing with medical. So they have new buildings, and also Sir has also suggested in court building JMFC. Minimum 40-50 numbers we are targeting for this year. They're very good. And this is Madam Shunya Leveling Program. Already our honorable governors are also very interested for Shunya Leveling Program. And now we are talking. We have discussed with the NPC and visited to their sites already there. And another building is also constructing in our office premises in the construction. In 2 months maybe it will be completed. Like residential building, what is to be taken up for this So senior level? residential building like government residential buildings. Government residential buildings. And स्टेट में तो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगे So उनको पहले there ले is no limitation on the area connected load, or that still stands 100 kilowatt? सेम Same. हाँ. Only it will be for residential purpose. रेजिडेंशियल पर्पस So we can take some complexes, Residential building में तो complexes. सर एक्चुअली वही रेसिडेंशियल कल भी मैम के साथ वो बातचीत हो रेसिडेंशियल में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो स्टार रेटिंग के बारे में वही 1 लाख का जो रिगार्डिंग है तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं थे वो थोड़ा उनको गवर्नमेंट के थोड़ा लिए तो फ्री है ना नहीं गवर्नमेंट तो हो जाएगा वो सिर्फ आप पहले गवर्नमेंट के लिए लीजिए ठीक हमें तो हाँ हम लोग बात कर रहे हैं उसी के लिए गवर्नमेंट के लिए टारगेट करना है और गवर्नमेंट के लिए कोई फीस नहीं है That MLA building is coming up for MLA quarters. Yes, sir. We are also discussing yesterday. That we can take up, na? Yes, sir. That we Circuit can- house like other. That's Thank you. Thank you. Yes, building sales. And now I would like to request Perry sir to speak few words because he is the host for this workshop. Then I think I'll conclude. Madam, we have only a small program to felicitate the STA representatives, so that we'll do on the stage, then we'll conclude. Actually, it's all because of the BE and Madam that we could host this program. We had a wonderful gathering here. States are here, so we are very happy that the states too could make it to this place. We are really grateful, and they must have enjoyed our state also. It's a wonderful place to be here. So they must have seen some places. In case you have some time, you can take that time and visit. A lot of places to be seen around Bhubaneswar also. So I take the opportunity to all of you and thank you very much. And also the building sale, support organizations, they're also here. So together I think we can do a great job. So sale will be really facilitating us. So I told Madam yesterday, we need not work always. Now you have got a vehicle, ECBC vehicle is there, the sale is working as a vehicle. So just board the vehicle and move faster. So that is the target. So I thank you all again. Now we have a small felicitation. The STA representative will ask to kindly come on the stage. Then we'll close the function. Thank you. Thank you, sir. We have now come to the end of this 2-day workshop. It was our pleasure to welcome the officials from Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal to the pristine land of Lord Jagannath. I am also pleased to share that the program where we are performing, that is ITC Welcome Hotel, is LEED Green Building certified. So now I request EIC sir, Director BW Madam, Chief Engineer sir, Finance and Audit Account Officer Hemendra Kumar sir to kindly felicitate the officials coming across the states as a token of appreciation. I would like to call upon the stage officials from CREDA SDA, Shri J.N. Baiga, Executive Engineer. I request Madam to please kindly felicitate.
Shri Kushal Tiwari sir, project coordinator. Yes. Just name them. Next, I would like to call officials from Jharkhand, Shri Atilesh Gautam, SDA Head, JREDA, and Shri Atul Nigam, Energy Expert, JREDA. Next, I would like to call officials from Bihar, Shri Pradeep Kumar, Electrical Superintending Engineer. Next, I would like to call officials from West Bengal, Shri Manas Palit, Superintending Engineer, HNUD. Next, I would like to call upon the stage official from Odisha, Shri Shai Om Vishnu Shankar Sir, Superintendent Engineer. I would like to request EIC Sir to give token of appreciation to Pankaj Sharma, Project Engineer, BEE. I would like to request Sir to give token of appreciation to Mr. Hemendra Kumar, Finance and Auditing Officer, BEE. ग्रुप फोटो नहीं ग्रुप हमें भैया फॉर्म में ग्रुप ना व्हाट्सएप ग्रुप कर दीजिए कोई जो I think we have created a WhatsApp group for the eastern region and the other and the ACBC cell consultants. So let us utilize that group, put some messages in that. We can add other members also. So I think that will be helpful for us, and I will request Madam to kindly add that. So with that, I thank you all, and I will request. There will be group photo outside here itself. Okay.
So we'll kindly request all of you to be here on the stage. Okay, I'll request kindly all of you to be on stage. We have a good photograph, then we'll conclude. Thank you. Gathering, this is just, I hope that you are now sensitized what kind of activities you have to take up and in which pace. So otherwise these 2 years will be very short for us to actually meet our targets, what we have set for to meeting in these 2 years. So request to the sales and the SDA officers that please work in sync, and we are always there. Whenever you have any difficulty or you have any query, you please send me a message on the WhatsApp. If you call, I may not pick up some time because of some meeting or whatever. So please send me a message and with your address at the last that you are talking from which SDA or which cell, so that I can reply you immediately. And there should not be any delay in the activities. So that is the whole point of meeting here and organizing this workshop. So I wish you all the sales and SDAs all the best, and hopefully we will have more success in the coming 2 to 3 months time. Thank you so much everyone. Have your lunch and have a tour of Bhubaneswar. मैम लुक मैम थैंक यू सर सर लुक सर सर लुक सर लुक सर ओके मैम थैंक यू सर मैम लुक मैम सर प्लीज सर थैंक यू सर सर प्लीज सर ओके सर Now be सर प्लीज सर मैम प्लीज मैम मैम लुक मैम थैंक यू मैम